میرے آقا جب اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، اور ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر وہ پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوار مبارک کو توڑ کر کے اوپر آ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا لوگوں تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، تم کتنے بھی میرے راستے میں کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا، یہ فرمایا میرے آقا نے۔ پیغمبر اسلام جب باہر تشریف لائے ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کے مارا کہ نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا۔ وہ نبی کی مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت کے لاکھوں سلام۔ نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر پڑی رونے لگی اور خون کے اثر کو اپنے مبارک چادر کو پانی میں بھگو کر کے خون کے اثر کو صاف کرتے ہیں۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتے آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہال کرانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجیے، وہ ام المومنین ہے تمام مومنوں کی ماں ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، وہ طائف کا میدان آج بھی گواہ ہے، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گلی آج بھی دیکھتے ہیں جہاں میرے آقا کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ میرے آقا جب طائف کے میدان میں پہنچے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میرے آقا کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ آقا ایک بات کے اندر تشریف لے گئے، ایک فرشتے نے آ کر کہا آقا مجھے اجازت دے دے، میری حکومت ہواؤں پر ہے، میری حکومت طوفانوں پر ہے، میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں۔ ایک فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو، میری حکومت بارش پر ہے، میری حکومت طوفانوں پر ہے، مجھے اجازت دے دے میں ان کے اوپر اتنی بارش کروں یہی ڈوب کر کے مر جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا یہ طائف جو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، مجھے اجازت دے دو پہاڑ گلا دیتا ہوں یہی پس کے مر جائیں گے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر، نبی نے مکہ چھوڑا مدینے میں آئے، تب بھی میرے آقا کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ خیبر، کبھی غزوہ تبوک، اللہ اکبر جب سن ہجری 8 آتی ہے اور جب نبی نے مکے کو فتح کیا ہے، میرے آقا 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ شان سے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن خوریزی کرنے کا دن ہے، آج چن چن کر کے مارنے کا دن ہے۔ آقا فرماتے ہیں او سیف اللہ خالد بن ولید یہ نہ کہو کہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ وہ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی نگاہوں کے سامنے جنہوں نے نبی کے سگے چچا کا قتل کیا تھا۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی پہ ظلم کر دے تو جب اس کا پریوار ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے دل میں خون جو ہے جوش، ہمارے جسم میں خون جوش مارنے لگتا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس نے میرے پریوار کو ستایا ہے۔ آج ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، آج ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ آؤ ذرا پیغمبر اسلام کی شان دیکھو، آج جس نبی کی محبت میں تم یہاں پر آئے ہو اس نبی کا ذرا مقام دیکھو۔ پیغمبر اسلام کے سامنے نگاہوں کے سامنے تمام لوگ ہیں، میرے آقا فرماتے کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں، ہم نے آپ کو کرم کرنے والا پایا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سب سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو، تم سب کے سب معاف کر دیے گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں کو سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے،
कसी लूट ले खुदा ना करे। ये मेरे नबी की शान है। पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। ऐ लोगों, जब ये इस्लाम दुनिया में फैल गया, सहाबाए किराम ने मशवरा किया था कि हमें जान मिली है नबी के सदक़े में, माल मिला है नबी के सदक़े में, औलाद मिली है नबी के सदक़े में। आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, ऐ अम्मी जान जरा ये बताइए, उस वक्त जब आका दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त चराग में जलाने के लिए तेल कहां से आया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है उस वक्त तेल होता तो हम चराग में नहीं डालते बल्कि उसको पी जाते। ऐसा आलम रहा है। एक एक खजूर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है हम खजूर को उठाते उसकी गुठली फेंकते नहीं थे बल्कि उसकी गुठली को रख लेते थे और उसमें नमक लगा करके चूस के गुजारा करते थे। इससे ये मत समझ लेना कि पैगंबर इस्लाम जो है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं थे। मेरे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका ने गरीबी को पसंद फरमाया है, आका ने गरीबी को महबूब फरमाया है। ऐ लोगों, सहाबा ने मशवरा किया, चलो आका की बारगाह में तोहफे लेकर चलते हैं। जब नजराना लेकर के आका की बारगाह में आए, आयत करीमा मेरे आका पे नाज़िल होती है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए मेरे महबूब अपने उन उम्मतियों से कह दो जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। इन्नल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। वो अहले बैत कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, आका वो आपके अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। क्या बात रज़ा उस तमन्निस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस तमन्निस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कौन अहले बैत है? लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इसने जब वतन की कुर्बानी मांगी तो सहाबा ने वतन को छोड़ दिया। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, सहाबा ने माल कुर्बान कर दिया। इस इस्लाम ने औलाद की कुर्बानी मांगी, सहाबा ने औलाद कुर्बान कर दी। ऐ परेरा वंश वालों, तमाम की कुर्बानी को एक जगह जमा कर दिया जाए तो करबला में हुसैन की कुर्बानी का जलवा निगाहों के सामने आ जाए। कौन हुसैन है? हाँ ने हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर झुकाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब वतन की कुर्बानी मांगी, कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला से अभी आपने कलाम सुना, मदीना बुला लीजिए। वतन भी कैसा प्यारा वतन जिसके लिए 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वतन भी ऐसा प्यारा वतन, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वतन भी कैसा प्यारा वतन जिसके लिए आका फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वतन भी कैसा प्यारा वतन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ऐसा प्यारा वतन हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं, वो भी मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं।
नाना के रोजे पे आके कहते हैं, नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए, अम्मी के रोजे पे सलाम करके आगे बढ़े, भाई हसन की तुरबत पे आए और भाई हसन की तुरबत को सलाम करके आगे बढ़े। और जब मेरा हुसैन मदीने से बाहर निकलने लगा तो मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना की तुरबत अतहर की तरफ। आज कारी मोहम्मद अली फैजी यहाँ बैठे हैं, कई बार गुंबद खजरा के जलवे देख कर आए हैं। फतेह मोहम्मद अलीमी साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछेंगे ये आपको बताएंगे या आपके यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खजरा के जलवे देखे होंगे। आदमी जब तक मक्के में रहता है घर बार की याद आती है, प्रॉपर्टी की भी कभी कभी याद आती है, लेकिन जब हाजी या उम्रा करने वाला मदीना पहुंचता है, एक बार गुंबद खजरा निगाहों के सामने आता है, दिल में इश्क रसूल का समंदर तरातल खेज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में गुम हो जाता है। और उसके लबों पे यही होता है, सुबह हो तो कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर हो तो कहता है काबे के बदरुद दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम हो तो कहता है या नबी सलाम अलैका। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत अल्लाह अकबर, उनसे पूछिए इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को या उम्रा करने वाले को रहने नहीं देती। 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, 8 दिन कब निकल जाते हैं उसे एहसास भी नहीं होता। जब 8 दिन पूरे होते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे या उम्रा करने आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके निकलना है। अल्लाह अकबर, कोई मदीने से मक्के के लिए आता है, कोई मदीने से डायरेक्ट घर के लिए आता है, वो आखिरी सलाम वो अलविदाई सलाम। अल्लाह अकबर, एक आशिक से पूछिए जब गुंबद खजरा पे सलाम करने के लिए जाता है, जब आका के रोजे पे अलविदाई सलाम करके जब वापस होता है, सुनहरी गालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला गुंबद खजरा के जलवों में गुम हो गया, 8 दिन कब निकले मौला पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे माल दे, दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। यही तमन्ना लेके आता है कि एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना मेरे मौला। अल्लाह अकबर, ये एक आशिक है, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी या उम्रा करने वाला जब गुंबद खजरा के जलवे देख करके वापस होता है, जब मदीने से रुखसत होता है तो उसके दिल की कैफियत में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना कि जब गुंबद खजरा पे सलाम करके जब हाजी वापस होता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। सामान्य सफर तैयार करता है हाजी मगर आंसू नहीं रुकते, आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और अपना सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है। घंटों बैठ करके बसों में रोते हुए आशिकों को हमने देखा और सुना है। अल्लाह अकबर, जब फ्लाइट में बैठ करके रोता है आशिक, और शायर ने कहा था तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर, मदीने की सरजमीन को 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब छोड़े, उम्रा करने वाला जब मदीने की सरजमीन को छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, सिर्फ नबी का रोजा देखने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है। अरे बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अभी इसने नबी के रोजे का दीदार किया है, नबी के जलवों को नहीं देखा है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके
नहीं रुके तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामुओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर, जब हुसैन से मदीना छूटा होगा, कैसी टूटती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो? तो मेरे हुसैन जवाब देते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हुसैन मदीना छोड़े मक्का आए, मक्के से हुसैन करबला चले। आप देख रहे हैं वक्त काफी हो चुका है, मैं आपको मुकम्मल तो शहादत इमाम हुसैन नहीं सुना सकता, मुकम्मल तो करबला में आपको नहीं सुना सकता। पिछली एक बार और में आया था, तब भी मुझको सबके आखिर में डाला गया था। ये हालात हैं, अल्लाह आप सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। कितना पैसा जलसों में खर्च होता है, लेकिन सुबह को हालात देखो तो आदमी वैसा ही नजर आता है। कुछ पैगाम लेकर के जाया करो जलसों से, कुछ सबक लेकर के जाया करो जलसों से, कुछ दर्स लेकर के जाया करो जलसों से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये बात मैं जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आखिरी बात है मेरी, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, क्योंकि फजर का वक्त भी होने वाला है और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को भी लंबा सफर करना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, एक बेटे इमाम हुसैन के और एक बेटे इमाम हसन के, जिनको हसन मुसन्ना कहते हैं। ऐ लोगों, इमाम हसन मुसन्ना से हसनी सैयद चले हैं और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सैयद चले हैं। ये 200 नस्ल चली है मेरे आका की। और याद रखना दुनिया वालों, आज दुनिया का हाल तो ये है कि आप तारीख उठा करके देखो, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती हैं, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आपको यजीद की नस्ल ढूंढे से नहीं मिलेगी, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक बहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि एक बेटे से इतनी नस्ल कैसे फैल गई? तो आओ मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ। एक वो जानवर है जिसे बकरी या बकरा कहते हैं, और एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहते हैं। वो एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देती है, और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4 से ज्यादा मैंने नहीं सुने। और बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान हो जाते हैं, और उसकी कुर्बानी नहीं होती है। होना तो ये चाहिए था कि उस जानवर से जंगल भर जाते, होना तो ये चाहिए था कि वो जानवर हर जगह नजर आता, लेकिन उसकी नस्ल कहीं कहीं आपको नजर आएगी, और बकरी और बकरा हर गली कूचे में आपको मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान में हुसैन ने जाने शहादत अपने रब के नाम पे नोश फरमाया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया, इतना बढ़ाया कि बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन
हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि छौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, डोडा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आज पूरी दुनिया में सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पाँव पे आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया, उनकी मैं एक बात आपको बता दूं और अपनी जगह बैठ जाऊं। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं? करबला के वाक़े के बाद किसी ने इनको मुस्कुराते नहीं देखा। जब जब पानी सामने आता रोने लगते हैं। करबला का मंजर निगाहों के सामने आ जाता है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक बार उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, अब्बा कभी तो जिंदगी का मोड़ एक ऐसा आता है कि लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप कभी नहीं मुस्कुराए? तो एक जवाब दिया था, बेटा जो मंजर मेरी आंखों ने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने जवान भाई के सीने में नेजा लगते हुए देखा, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपने 6 माह के असगर के हल्क में तीर लगते हुए देखा। अल्लाह अकबर। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना वापस आए थे तो 2 काम किए थे आपने। एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे और लंगर पे भूखों को खाना खिलाते थे। लंगर पे आप भूखों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी पिलाते। और नबी की हदीस पाक भी है, पूछा गया आका से, अय्यो अमलिन अफजलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल क्या है? आका फरमाते हैं, तीबुल कलाम व इतआमुत तआम व इफ्शाहुस सलाम, मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना, ये सबसे बेहतर अमल है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका टोटल खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे और किसी को नहीं पता था कि उनके घर पे खाना कौन पहुंचा देता है, ये राशन की किट कौन उनके घर पे पहुंचा देता है। आज अफसोस होता है अगर हम मस्जिद में 10 रुपए भी देते हैं तो पहले इमाम साहब के पास जाके कहते हैं मेरे नाम का ऐलान लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि मैंने मस्जिद में 10 रुपए दिए हैं। अगर किसी गरीब को कपड़े दे देते हैं तो 4 जगह चौराहों पे जिक्र करते हैं कि मैंने फला गरीब को कपड़े दिए थे। ये हाल आज हमारा है। आओ जरा हुसैन के बेटे की शान देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तकरीबन 100 परिवार ऐसे मदीने शरीफ में जिनका टोटल खर्च आप उठाए हुए थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप अपनी पीठ पे बोरी लाद करके लेकर के जाते हैं रात में, बाबा आप मुझे इजाजत दे दो, आपका जवान बेटा कब काम आएगा, मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे ये सामान पहुंचा के आ जाता हूँ। तो हुसैन के बेटे की शान देखो, फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मदीने शरीफ में फला परिवार गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल, अगर कोई एक केला भी किसी मरीज को देता है तो पहले फोटो खींच करके उसको फेसबुक पे डालता है। लॉकडाउन में नहीं देखा किसी गरीब को आपने कि एक औरत को बीच में खड़ा करके चारों तरफ से लोग खड़े होकर के थोड़ा सा राशन दे करके फोटो खींच करके फेसबुक पे और इंस्टा पे अपलोड कर रहे थे। ये हाल है, हम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। सीखो हुसैन के बेटे से, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। ये हुसैन के बेटे की शान है। फरमाया बेटा मैं तुझे भेजूंगा तो उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मदीने में फला परिवार गरीबों का है। रात में खाने पीने की किट बनाते सामान की और रात के अंधेरे में उनके घरों के दरवाजों पे रख करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ जाते थे। सुबह को जब वो दरवाजा खोलते तो पता चलता कि कोई खाने पीने का सामान उनके घर पे रख करके चला गया है। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऐ लोगों मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमें हुसैन
के बेटे का किरदार अपनाना चाहिए। हमें भी देखना चाहिए कि हमारी बस्ती में कहीं कोई गरीब तो नहीं है, हमें भी देखना चाहिए कहीं हमारी बस्ती में कोई परेशान तो नहीं है। आज हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, आज हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते हैं। ये हालात आज हमारे बनते चले जा रहे हैं। कितने मुस्लिम परिवार ऐसे हैं कि आज उनके घरों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, सिर्फ किस वजह से कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से, किस वजह से कि आज उनके घरों में इतना पैसा नहीं कि आज जहेज के लोबियों का मुंह बंद कर सके, आज उनके घरों में इतना पैसा नहीं कि वो जहेज मांगने वालों का मुंह भर सके। याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जिस अल्लाह ने तुझे दौलत दी है वो मेरा रब दौलत छीन भी सकता है। आज उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बदशा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। उस रब की पकड़ से डरो प्यारे मुसलमानों। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने नूर नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वरना किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है। पैर की चप्पलें घुस गई आलिमों के घरों के चक्कर लगाते लगाते कि कोई ताबीज दे दो मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, पीरों से दुआ कराते कराते कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पता नहीं कि कब घर का चराग गुल हो जाए, इसलिए उस रब का शुक्र अदा करते रहो और उस रब की पकड़ से करते रहो। मैंने दुनिया का हर जायजा लिया है, मैंने हालात को देखा है कि ससुराल के पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। ये ससुराल से जो मिलता है 1-2 साल में खत्म हो जाता है। ससुराल की चौखट पे मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पे मांगो, अपने आका की बारगाह से मांगो। ससुराल वाले देंगे जो 3 साल में खत्म हो जाएगा, और मदीने वाले देंगे तो नस्लें खाएंगे, कभी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी, तभी उसकी बरकत घर से नहीं जाएगी। याद रखना, शायर ने पुकार करके कहा था और बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार देना लाहना हाजत अगर की है। मेरा ईमान कहता है मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार देना लाहना हाजत अगर की है। ऐ लोगों, एक साहब मुझे मिले, कहते हैं मौलाना मुझे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, जुमे का दिन है, मैं 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा कर दूंगा। 3 जुमा में एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चला के मुझसे कहते हैं मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? मैंने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ है, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ है। ऐ परेवा वैश वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे में मांगता हुआ है। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 10 रुपए में राजी नहीं होता, कोई 100 रुपए में राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है, और कोई कार पे भी राजी नहीं होता है। ऐ लोगों याद रखो, ये दुनिया वालों से मांगोगे जिल्लत मिलेगी, मदीने वाले मुस्तफा से मांगोगे इज्जत मिलेगी। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए तो सुनो। हम तुमसे नहीं पूछते हैं, कारी मोहम्मद अली फैजी से नहीं पूछते हैं, हाफिज आरिफ से नहीं पूछते हैं, हाफिज असलम से नहीं पूछते हैं कि किससे मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर ईमान इश्क व मोहब्बत की बारगाह में आला हजरत से पूछो हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे। तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आएगी, कौन देता है देने को भू चाहिए, कौन देता है देने को भू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी, नबी की चौखट से मांगो, नबी की बारगाह से मांगो, मदीने वाले देंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। बता दूं आपको, बस 2 मिनट की बात, हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है। तब भी बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, 7 पे बारी बारी आए तब भी देता है, मना नहीं करता। तो आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता, तब भी साहिल की तमन्ना पूरी नहीं होती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया, दूसरे पे आ गया, फिर भी पूरी नहीं हुई, तीसरे पे आया, फिर भी पूरी नहीं हुई, 7 पे बारी बारी आया तब भी पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो क़यामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे वाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हाकिम भी है मनता तेरा, वाह क्या जूदे करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अपने गरीबों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अपनी बस्ती में देखो कि अगर कोई बेटी गरीब है, जहेज की वजह से उसका रिश्ता रुका हुआ है, तो मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा और तमाम बस्ती वालों से भी गुजारिश करूंगा, जैसे जलसे के लिए चंदा करके आप जो है इतना बड़ा जलसा करा देते हो, ऐसे ही कोई गरीब बेटी मोहल्ले में बस्ती में नजर आए तो सब मिल करके उसकी शादी करा दोगे, एक बेटी का घर बस जाएगा, परवरदिगार आदम तुम्हारी जिंदगी को सजा देगा। मेरा यही आज पैगाम है। दुआ है परवरदिगार आदम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन